بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک دیکھیں گے۔ یہ ٹاپک آپ کی بک میں پیج نمبر 126 پہ موجود ہے۔ ٹاپک کا نام آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، کانفیڈنس انٹرول فار دا ڈفرینس بٹوین ٹو پاپولیشن مینس ڈیپینڈنٹ سیمپلس یا پیئرڈ آبزرویشن۔ آپ نے اس سے پہلے لیکچرز میں بھی کانفیڈنس انٹرول فار دا ڈفرینس بٹوین ٹو پاپولیشن مینس کا ٹاپک دیکھا ہے، لیکن وہ جو کام آپ نے دیکھا ہے اس سارے کام کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ سیمپل کیس تھا، جبکہ آج ڈیپینڈنٹ سیمپلز کا کیس ہے۔ تو سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ فرق دیکھنا ہے کہ ڈیپینڈنٹ سیمپلز، یہ جو آج کا کام ہے، اور انڈیپینڈنٹ سیمپلز میں ڈفرینس کیا ہے۔ پہلے ان میں ڈفرینس پتا چلے کہ یہ ہمیں کون سا کام کب یوز کرنا ہے، یہ تو پتا ہو۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ اپنی بک میں یہ پیراگراف پڑھیے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو پڑھیے گا، ممکن ہے آپ کو یہ جلدی سمجھ آ جائے۔ تو میں ایک اور ایگزامپل سے بتاؤں گا۔ یہ تو میں نے ٹاپک کا نام جو بولا ہے وہ لکھ دیا۔ یہ میں نے دو طرح کے ڈیٹا لکھے ہیں۔ اب یہ جو پہلا ڈیٹا ہے یہ ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ سیمپلز کے اوپر، اور دوسرا ڈیٹا ڈیپینڈنٹ سیمپل۔ تو ہم آمنے سامنے ان کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ سپوز کیجئے کہ ہمارے پاس دو کلاسز ہیں۔ کلاس 1 میں سے بچوں سے ایک ٹیسٹ لیا گیا اور یہ انہوں نے مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 100۔ یہ 4 بچے ہیں، ان کے نمبر ہیں۔ پھر کلاس 2، وہاں سے بھی بچوں سے ایک ٹیسٹ لیا گیا، یا وہی ٹیسٹ لیا گیا ان بچوں سے، اور ان بچوں نے آؤٹ آف 100 یہ مارکس حاصل کیے۔ اب ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ جو پہلے ایک بچے کے 80 مارکس آ رہے ہیں، یہ 80 کلاس 1 کے بچوں کے مارکس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ 80 ایک زیادہ نمبر ہے تو یہ اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ایک 80 موجود ہے، یا یہاں پر کچھ اور ایسے ہیں۔ بس یہ اسٹوڈنٹ کی اپنی محنت ہے، وہ جس طرح انہوں نے محنت کی اس طرح ان کے مارکس آ گئے۔ یعنی یہ مارکس دوسرے بچوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، یا یہ آبزرویشن دوسری آبزرویشنز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ ایک اور کیس دیکھیے۔ اب یہاں پر سپوز کیجئے کہ ایک میڈیسن مارکیٹ میں آئی ہے، اور اس میڈیسن کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا لوگوں کے جو ویٹ ہیں وہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یعنی وہ ویٹ کم کرنے میں کارآمد ہے یا نہیں۔ تو ایسا جو سچویشن ہوگی، تو اس سچویشن میں اس طرح کے سیمپلز لینے کا فائدہ نہیں ہے، وہ اس کا ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں اب جو کام آپ دیکھیں گے تو ایسی صورتحال میں یہ کام کیا جاتا ہے، کرتے ہی ہیں اس میں کہ کچھ لوگوں کے وزن، سپوز کہ 4 لوگ ہیں، تو ان کے وزن میڈیسن یوز کرنے سے پہلے وہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ سپوز کیجئے کہ میں نے اس کے یہ فرض کیے ہیں لوگوں کے ویٹس بیفور کا مطلب میڈیسن یوز کرنے سے پہلے۔ یہ ان لوگوں کے ویٹس ہیں میڈیسن یوز کرنے سے پہلے۔ اب انہوں نے 2 منتھس یا 3 منتھس وہ میڈیسن یوز کی، اور یوز کرنے کے بعد دوبارہ ان کے ویٹس ریکارڈ کیے گئے۔ تو ویٹس آفٹر، یہ ان کے ویٹس بعد میں ہیں۔ تو دیکھیے یہاں سچویشن ایسی ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی میڈیسن وہ اچھی ہے یا نہیں، یہ تبھی پتا چلے گی جب بیفور میں جو بندہ ہوگا اس کا وزن آپ دیکھیں گے، اور اسی بندے کا وزن آفٹر میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی جب سیم بندے سے 2 آبزرویشن حاصل کرنا لازمی ہو، ضروری ہو، تو ایسا ڈیٹا کہلاتا ہے ڈیپینڈنٹ سیمپلز یا پیئرڈ آبزرویشن۔ یہ مزید اس کی میں یوں کہوں گا کہ دیکھیے ایک بندہ جس کا وزن پہلے 90 kg تھا، اسے میڈیسن یوز کی اور اس کا وزن کم ہو کر 85 ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک بندہ اور تھا جس کا وزن پہلے 60 kg تھا، میڈیسن یوز کی اور اس کا وزن بھی کم ہو کر 55 ہو گیا۔ اب کوئی بندہ ہم سے یہ کہے کہ بھئی یہ 85 جو ہے، یہ 85 کیوں ہے؟ یہاں پر ہمارا 55 یہاں کیوں نہیں آیا، اور یہاں پر 85 کیوں نہیں آیا؟ تو ہم بولیں گے یہ کہ 85 اس لیے ایک بڑی ویلیو ہے اور 55 اس لیے چھوٹی ویلیو ہے کہ یہ دونوں، یہ جو پہلا آدمی ہے 85 وہاں سے آ رہی ہے، اس آدمی کا ویٹ پہلے بھی 90 kg تھا، اور یہ کم اس لیے ہے کہ اس کا ویٹ
ये वेट पर्सन 2 का है और इस पर्सन 2 का वेट पहले भी 60 kg था, तो यानी ये वैल्यू बड़ी इसलिए है क्योंकि ये पहले भी बड़ी थी, ये वैल्यू छोटी इसलिए है क्योंकि ये पहले छोटी थी। यहां पर बोलेंगे कि 85, या ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये डिपेंड करती है इसके ऊपर, और ये ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सिमिलरली बाकी भी देखिए, मैंने अगर 110 लिया ना, एक बंदे का वजन बिफोर में 110 लिया है, तो मेडिसिन यूज करने के बाद 110 का मैंने 100 यहां लिखा, मैंने यहां पर 40 या 30 नहीं लिखा, क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉनसेंस बात हो जाएगी। कोई भी बंदा ये कह सकता है कि 110 अगर वेट है तो वो 40 kg कैसे हो सकता है, तो 110 का 100 हो सकता है। अच्छा, ये जो केस था, यानी जब ऑब्जर्वेशंस एक ही जगह से आ रही हों या ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे पर डिपेंड करती हों, तो वो केस कहलाता है डिपेंडेंट सैंपल का केस। तो दोनों में ही, दोनों केसेस में हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते हैं। तो यहां पर बहरहाल आप ये लाइन तो पहले देखते रहे हैं, जो काम डिपेंडेंट सैंपल का होगा या पेयर्ड का होगा, उधर भी आपने ऐसी लाइन लिखनी है, 90% CI फॉर μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू, लेकिन यहां पर आपको साथ में μd लिखना पड़ेगा। तो दिस इज d फॉर डिफरेंस, स्मॉल d का मतलब डिफरेंस और ये म्यू का मतलब मीन ही है। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि इस पर इतनी बात हो सकती है अभी हम। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 150 के ऊपर। इसे हम पढ़ते हैं। इट इज क्लेम्ड दैट अ न्यू डाइट विल रिड्यूस अ पर्सन's वेट बाय 5 किलोग्राम ऑन द एवरेज इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स। कह रहे हैं कि एक नई डाइट आई है मार्केट में, और अगर आप उसे 8 वीक तक यूज करेंगे तो आपके वेट में कमी आएगी, और वो कमी आएगी कितनी, 5 kg की। The weights of 4 men who were given this diet were recorded before and after 8 week period. अब 4 लोग हैं, उनके वेट्स इस डाइट को यूज करने से पहले भी रिकॉर्ड किए गए हैं, और उन्हीं 4 बंदों के वेट डाइट को यूज करने के बाद भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये इस तरह का डेटा आपको दिया हुआ है, ये मेन 1 2 3 4, और ये इनके वेट्स हैं बिफोर और ये वेट्स हैं आफ्टर। तो ये डेटा देखकर भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वेशन मैन 1 की हैं, ठीक है जी, लिहाजा ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का केस है। हमें फिर क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डिफरेंस इन द वेट्स। Assume the distribution of weight to be approximately normal. हमारा क्वेश्चन ये है जी कि हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, किसके लिए, डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए। लेकिन क्योंकि ये डेटा आपका पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का है या डिपेंडेंट सैंपल है आपके ये वाले, तो इसका काम आज आप देखिए कैसे होगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन किया गया है 90% CI फॉर μd। तो उन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन मीन, तो D फॉर डिफरेंस, म्यू फॉर मीन्स। तो सोल्यूशन आप यूं स्टार्ट करेंगे इसका, 100 into 1 minus alpha% CI फॉर म्यू डी। आज जो ये टॉपिक है ना, यहां पर आपको म्यू डी लाजमी लिखना चाहिए, म्यू डी इज इक्वल टू, और यहां पर भी μ1 माइनस μ2, ये सारा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे, अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ म्यू डी लिख दिया, तब भी ये काम मेरे हिसाब से तो गलत है। तो क्योंकि म्यू डी बताना पड़ेगा कि हम जो डिफरेंस बिटवीन मीन ले रहे हैं वो μ1 माइनस μ2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसको पढ़ता हूं, दिस इज डी बार प्लस माइनस टी अल्फा हाफ, ब्रैकेट में है n-1। तो ये n-1 आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ऊपर है जी एस डी, ये डी जो है ये एस के सबस्क्रिप्ट में है, ये स्मॉल एस है, और ये डी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब ये जो क्वेश्चन में अल्फा आ रहा है, ये तो हम बहुत दफा पहले देख चुके हैं, लिहाजा मैंने अल्फा को आज डायरेक्ट लिख दिया है। वो आपको पता है कि अल्फा हमारा 3 स्टेप से आता है, 90 और 100 को इक्वेट करके। अच्छा, अब हम जो डेटा में दिया गया था ना, वो बिफोर और आफ्टर का, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, वेट्स ये बिफोर और ये आफ्टर। तो आपने बिफोर को x1 कह देना है और आफ्टर को x2 कह देना है। अब यहां क्योंकि x1 कह रहे हैं, इट मींस x1 बिफोर, और x1 है तो लिहाजा μ1 से ताल्लुक है, यानी पॉपुलेशन नंबर 1 ऐसे समझ लें आप इसको, है हालांकि पॉपुलेशन तो एक ही है।
लेकिन x1 का ताल्लुक μ1 से है, यूं ज्यादा मुनासिब है। आफ्टर में x2 लिखिए और x2 का ताल्लुक μ2 के साथ हो जाएगा। अब आपको एक नया कॉलम बनाना है d, तो d फॉर डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस, तो आप ये करेंगे x1 माइनस x2 करिए। तो ये पहली वैल्यू x1 की है 63 और x2 की है 64, यानी ये -1 कहां से आ रही है, ये आ रही है 63 माइनस 64 -1 आ जाएगा। इसी तरह से 64 माइनस 58 6 आ जाएगा, और बाकी भी ये डिफरेंस दिए गए हैं, यानी दोनों x कॉलम के डिफरेंस देने हैं और ये आपके पास आ जाएंगे। फिर आप साथ में डी स्क्वायर कॉलम भी बना लीजिए। डी स्क्वायर बनाने की वजह है क्योंकि आपको एस डी भी चाहिए यहां पर। तो ये दो कॉलम आपने बनाने हैं, इन दोनों के सम कीजिए, यहां से आपको समेशन डी मिलेगा, यहां से समेशन डी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि फार्मूला में आ रहा है डी बार और एस डी, तो इन दोनों की वजह से हम ये दो कॉलम बना रहे हैं। डी बार जिस तरह एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, तो डी बार का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा डी ओवर एन। सिग्मा डी ये आपके पास आ रही है समेशन डी 16, ये आप 16 यहां पुट कीजिए। एन एन यहां पर भाई आप एन को काउंट जब करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, आपका एन यहां पर 4 है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पेयर वाइज है, तो ये पूरा पेयर एक ऑब्जर्वेशन है। 63 और 64 ये पूरी एक ऑब्जर्वेशन हम यहां समझते हैं। तो यहां जितने पेयर होंगे, पेयर की तादाद एन होती है, तो ये 4 पेयर्स हैं 1 2 3 4, लिहाजा एन की जगह 4 आ गया। ये डिवाइड करिए और ये आपके पास डी बार की वैल्यू 4 आ गई। दिस इंप्लाइज मैंने करके डी बार का आंसर यहां उसको हाईलाइट कर दिया। रह गया फिर एस डी। एस डी का फार्मूला आप ये पहले भी बहुत दफा देख चुके हैं, लेकिन वो एक्स की फॉर्म में था, वो था 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। तो उस फार्मूला में जहां एक्स आ रहा था वहां पर आप आज डी यूज करेंगे, क्योंकि आज आपके कॉलम डी में कन्वर्ट हो गया है, तो कॉलम का नाम डी है तो लिहाजा एस डी हो जाएगा। अब इसमें जो दोनों सम आ रहे हैं ये हमारे पास मौजूद है, पर यहाँ पुट करिए, आपके पास एस डी आ जाएगी। जब एस डी आ जाएगी तो ये सारी चीजें एस डी डी बार और ये अपना अल्फा ए में पुट कीजिए। ये मैंने पुट किया, डी बार की जगह 4 पुट किया जी, ये डी बार था 4 पुट कर दिया इसको, प्लस माइनस अपनी जगह पर टी अल्फा हाफ ये आ गया जी, अल्फा यहाँ पर 0.10 है और n माइनस 1, n आपका 4 है, तो चलो यहाँ इसको अलग से लिख भी देते हैं कि n हमारा इस क्वेश्चन में 4 है। तो यहाँ 4 माइनस 1 3, ये 3 आ गया, और बाकी एस डी की और n की वैल्यूज पुट करिए। ये t की वैल्यू आप टेबल में से खुद देखिए, ये क्योंकि हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं, ये आपको वैल्यू टेबल से मिलनी है। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर आप आखिर में लाइन लिखिए, हेंस 90% सी आई फॉर म्यू डी इज, ये दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर आ गई। इसके बाद 30 में ऐसा है जी कि आपको इस क्वेश्चन की तरह ये 2 सैंपल नहीं दिए गए हैं, यानी बिफोर आफ्टर नहीं है, बल्कि इस टेबल की मदद से आपने ये जो डी कॉलम बनाया था ना, उस बंदे ने ये किया है क्वेश्चन वाले ने कि डी कॉलम की वैल्यूज ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बता दी हैं। आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, आपको फिर समझ आएगा कि ये जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं ये डी कॉलम की वैल्यूज दे दी हैं, यानी हमारे पहले 2 कॉलम का वो नहीं होगा इस बार यूज। जस्ट आपने डी कॉलम लिखना है और वैल्यूज लिख देनी है, और साथ में डी स्क्वायर कॉलम बनाना है, वैल्यूज वो स्क्वायर करके लिखिए, दोनों सम करें और ये दोनों चीजें डी बार और एस डी मालूम कीजिए और ये फार्मूला लिखकर इसे पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ आंसर आ जाएगा। बस यही 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, फिर हम काम नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।